In the last lecture, we learned about all the important terminologies related with the lenses. That is center of curvature, radius of curvature, principal axis, optical center, principal focus, focal length for convex and concave lenses separately, right? Today we are going to start with drawing images using ray diagrams, finding images, position, nature and size of images using ray diagrams. So these ray diagrams are very similar to the ray diagrams which we have done for mirrors, spherical mirrors. Okay, let's see how to do it. Let's see. So first of all, they have shown three rays over here. I'm going to draw and show it to you so that you don't have any confusions. सबसे पहले जब तुम रे डायग्राम बनाते हो ना, तो एक स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्ट करो जो है तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मिडल में, अप्रॉक्सीमेटली मिडल में एक पॉइंट ले लो जो है तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर. ये ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, ऐसी डॉटेड, लाइट और डॉटेड. ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन के जो एंड पॉइंट्स है ना, उनको ज्वाइन कर दो ऐसे कर्व लाइन से. यू अंडरस्टैंड? तो ये तुम्हारा लेंस रेडी हो जाए. दिस इज योर लेंस. ये कॉन्वेक्स लेंस है. ठीक है, वैसे ही कॉनकेव लेंस भी बनाते हैं. प्रिंसिपल एक्सिस, एक पॉइंट ले लो, ऑप्टिकल सेंटर है ये पॉइंट, इससे पास होती हुई एक स्ट्रेट डॉटेड लाइन बना दो. हाइट सेम होनी चाहिए उसकी, अबव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस. अब ऐसे दो लाइंस बना दो, थोड़ी बड़ी लाइंस बनाना. ठीक है, अब अंदर की तरफ पास होता हुआ एक कर्व बनाओ, केव्ड इनवर्ड्स. राइट, सो यू गेट कॉनकेव लेंस. ठीक है, मैंने तीन तीन क्यों बनाए, इसका रीज़न मैं दे रहा हूँ. सो what we are studying over here is rules for obtaining images with convex and concave lenses. Rules for obtaining images. ठीक है, so there are three rules each for convex and concave lenses. Rule number 1: when a ray of light is incident parallel to the principal axis, when a ray of light is incident parallel to the principal axis, after refraction it converges and passes through the focus.
after refraction it converges and passes through the focus. मतलब अगर किसी भी रे ऑफ लाइट को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट करोगे तो रिफ्रैक्शन के बाद वो कन्वर्ज होके फोकस से पास करेगी. इट विल पास थ्रू द फोकस. सेकेंड रूल है when any ray of light is incident through the focus, sorry for that, मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ. yes, when any ray of light is incident through the focus, सपोज फोकस के थ्रू इंसिडेंट हो रही है रे ऑफ लाइट. ठीक है, तो क्या होता है इसके साथ, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. बिल्कुल पहले रूल का उल्टा. Okay, looks fair. So this ray of light is incident through the focus और refraction के बाद it becomes parallel to the principal axis. Rule number 1, rule number 2, rule number 3. सिर्फ 3 रूल्स होते हैं और ये 3 में से भी तुम्हें सिर्फ 2 ही बनाने हैं कोई भी. Rule number 3, when a ray of light is passing through the optical center, it passes undeviated. When the ray of light passes through the optical center, वो सीधा सीधा निकल जाती है, undeviated. It does not deviate. When a ray of light passes through the optical center, it goes undeviated. ठीक है, तीनों रूल समझ में आए. बहुत इजी है. ये तीनों में से कोई 2 यूज़ करना है. ओनली 2 आउट ऑफ द 3. वैसे रूल्स हमारे कॉन्केव लेंस के लिए भी है. ठीक है. फर्स्ट रूल, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन अ रे ऑफ लाइट when a ray of light is incident parallel to the principal axis, it diverges and appears to be coming from the focus. It diverges and appears to be coming from the focus. अब appears to be coming from मतलब ऐसा लगता है कि वो फोकस से निकल रही है. मतलब ये रे ऑफ लाइट को जब मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूँगा ना, इट विल मीट एट एफ. सो रे ऑफ लाइट एफ से नहीं आ रही है, वो तो पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस से. बट आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकेम it diverged or it bent in such a way that it appears to be coming from the focus. So this is the refracted.
The next ray of light. So ये जो next ray है, it's a special ray. It is incident towards the focus. मतलब जब ये ray of light incident होती है तो ऐसा लगता है कि it will go and meet the focus. Suppose यहाँ पे focus है तो ये focus पे जाके मिलेगी, लेकिन यहाँ क्या ये focus पे जाके मिलती है? नहीं. When it is incident towards the focus, what happens is after refraction it becomes parallel to the principal axis. After refraction it becomes parallel to the principal axis. In concave lens, when a ray of light is incident towards the focus, it becomes parallel to the principal axis after refraction. ठीक है, and the last ray of light is very simple. ऑप्टिकल सेंटर का जो डेफिनेशन मैंने बताया था ना, डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, द सेम थिंग. व्हेन एनी रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट टूवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर, इट पासेस अनडेविएटेड थ्रू इट आफ्टर रिफ्रैक्शन. कोई भी रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरती है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद अनडेविएटेड स्ट्रेट विदाउट एनी बेंडिंग आगे निकल जाती है. तो ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है लेंस के सेंटर में जिससे पास होने वाली रे ऑफ लाइट डेविएट नहीं होती. सो दीज 3 आर द रूल्स जो मैंने तुम्हें ड्रॉ करके बताया फॉर कॉन्वेक्स एज वेल एज कॉन्केव लेंसेज. रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग द images using ray diagrams. Okay, now the important thing, that is drawing the ray diagram. ठीक है, so remember तुमने ये सारी चीज़ें की हुई है जब तुमने मिरर्स पढ़े हैं. So you remember some of the things. Mirrors में, खास करके concave mirrors में, there were 6 positions. Do you remember? There were 6 positions. एक तो infinity, ठीक है, फिर beyond center of curvature, at center of curvature, between center of curvature and focus, at focus, between focus and optical center. और पोल था उसमें. ठीक है, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा. ये 6 की 6 सेम पोजीशन हमको यूज़ करनी है. सो ये सिमिलैरिटी है, लेकिन फ़र्क इतना ही है कि वहाँ पे हम कॉन्केव मिरर के रे डायग्राम्स बनाते थे 6 पोजीशंस के लिए. कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 रे डायग्राम थे, एक इन्फिनिटी पे था और एक एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल था. यहाँ पे उल्टा है. यहाँ पे convex lens has got 6 positions of objects and images, and concave lens has got just 2 positions. उल्टा है. ठीक है, सो ये थोड़ा ध्यान में रखो. वही सारी चीज़ें करनी है अपने को, लेकिन लेंस चेंज हो जाएगा. प्लस तुम देखोगे कि इमेज कैसे बनता है वो भी थोड़ा, रे डायग्राम भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है. सो यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और ये सारे जो रूल्स हमने देखे उनको यूज़ करना है. वहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा था. सो रे डायग्राम्स में सिमिलैरिटी है पैटर्न में, बट स्टिल देर आर सम डिफरेंसेस. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. और जब तुम रिवाइज करो ना, बहुत एक अच्छे से माइंड में डिस्टिंक्शन रख के रिवाइज करना है, नहीं तो ये मिक्स हो सकता है मिरर्स एंड लेंसेज, क्योंकि दोनों तुम 10th में पढ़ रहे हो. ICSE बोर्ड को मिरर्स 9th में पढ़ाते हैं
और लेंसेज 10th में पढ़ाते हैं, तो उनको कन्फ्यूजन नहीं होता है। बट तुम लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है बिकॉज तुम मिरर्स भी पढ़ रहे हो 10th में और लेंसेज भी पढ़ रहे हो 10th में, और दोनों के रे डायग्राम्स। सो यू टू बी वेरी, और मिरर फार्मूला भी है और लेंस फार्मूला भी है, मीन्स यू टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ठीक है, तो देर आर 6 पोजिशंस, लेट मी लिस्ट दोज पोजिशंस। Positions of objects, object in fact, not objects. Position of image, nature, size. ठीक है, ऐसा एक टेबल पहले ही बना के रख देना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड देन यू कैन रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। जो भी मैं ड्रॉ करूँगा तुम ये टेबल बना के तुम अपनी बुक में रख दो, और फिर उसमें सारे ऑब्जर्वेशंस या जो भी तुम्हारे इन्फरेंसेस है उसको रिकॉर्ड करते जाओ। गो ऑन रिकॉर्डिंग, गो ऑन राइटिंग। ठीक है, सो पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट मैं पहले ही बता देता हूँ। ये किसके लिए कर रहे हैं हम लोग? फॉर कॉन्वेक्स लेंस। ये हम किसके लिए कर रहे हैं? कॉन्वेक्स लेंस के लिए कर रहे हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट नंबर 1 एट इन्फिनिटी, पहले सबसे दूर रखेंगे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, नंबर 2 बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, नंबर 3 बिटवीन C एंड F। बना दो ये टेबल, और जो मैं लिख रहा हूँ एटलीस्ट लिख लो, फिर आगे तुम्हें भरना है इसको। नंबर 4 एट, है बियॉन्ड C के बाद एट C आएगा ना, सॉरी एट C, फिर आएगा बिटवीन C एंड F, फिर आएगा एट F, and the last position is between focus and optical center, between focus and optical center। ठीक है, तो ये सारी अलग अलग पोजीशंस है ऑब्जेक्ट्स की, जिसके लिए हमें इमेज कहाँ पे बनता है वो फिगर आउट करना है। लेट मी शो यू अ स्मॉल सिमुलेशन। ठीक है, एक छोटा एक सिमुलेशन है मेरे पास, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, और तुम्हें उससे पता चलेगा कि कैसे ये पोजीशंस चेंज होती है इमेज की, और उसका नेचर और साइज भी चेंज होता है। 1 मिनट देना मेरे को, 1 मिनट। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कॉन्वेक्स लेंस बीच में, इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ मैं। Okay, I think you can see. Do you see that this is the object over here जिसको मैं move कर रहा हूँ? Do you see? I'm moving the object. मैं ऑब्जेक्ट को इससे दूर नहीं लेके जा सकता हूँ। ठीक है, दैट थिंग इज़ नॉट अवेलेबल ओवर हियर। वो ऑप्शन है ही नहीं कि मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखूँ, बट ऑब्जेक्ट काफ़ी दूर है अभी। 2F का मतलब जो तुम्हें दिख रहा है ना यहाँ पे 2F, दैट 2F मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अच्छा, सो ऑब्जेक्ट को मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ पे रखा है मैंने। अभी मैंने रखा है
beyond 2f या beyond c, beyond center of curvature, do you see two rays of light? एक रे ऑफ लाइट जा रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास कर रही है, एक पास कर रही है फोकस से और आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो रही है, और दोनों रेज ऑफ लाइट जहाँ पे मीट कर रही है वहाँ पे बन रही है तुम्हारी इमेज, एंड दिस इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। रियल एंड इन्वर्टेड इसका नेचर है और डिमिनिश्ड उसकी साइज है। अच्छा, इसकी पोजिशन क्या है? बिटवीन एफ एंड 2f ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, बिहाइंड द लेंस, बिटवीन एफ एंड 2f। अब देखो मैं इसको थोड़ा थोड़ा नज़दीक ला रहा हूँ इमेज को, प्लीज़ नोट के क्या होता है। मैंने एग्जैक्टली इसको 2f पे लेके आया, 2f मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। यू सी व्हाट चेंजेस हैपेंड इन द इमेज। देखो मैं इसको दूर लेके जाता हूँ, इमेज छोटी है, इमेज छोटी है, दूर है तभी। अब देखो मैं इसको पास लेके आया, एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा। व्हाट हैपेंड टू द इमेज? द इमेज बिकेम ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज सेम हो गई अब इस पोजीशन पे। सो जितना दूर होता है तुम्हारा ऑब्जेक्ट उतनी इमेज छोटी बनती है कॉन्वेक्स लेंस में, और रियल और इन्वर्टेड तो होती है, ठीक है। जितना तुम पास लेके आओगे उतनी इमेज बड़ी होती जाएगी। अच्छा, 2f मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे अगर तुम तुम्हारे ऑब्जेक्ट को, तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, बट ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, एंड इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज, रियल इन्वर्टेड ऑन द सेम साइज। कोई गैस कर सकता है अगर मैं इसको और राइट मतलब ऑब्जेक्ट को और राइट में लेके जाऊं टूवर्ड्स द फोकस, तो क्या होगा? इमेज बड़ी होगी या छोटी होगी? मैग्नीफाई होगी, इमेज मैग्नीफाई होगी। चलो देखते हैं, इज इट बिकमिंग मैग्नीफाइड? इज इट बिकमिंग मैग्नीफाइड? यू सी दैट, यू सी दैट जितना मैं ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा हूँ, स्लाइड कर रहा हूँ टूवर्ड्स द फोकस, इमेज उतनी बड़ी हो रही है। सो इमेज इज बिकमिंग रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। पहले ही रियल इन्वर्टेड थी इमेज, लेकिन अब वो मैग्नीफाई हो रही है, ठीक है। देखो देखो धीरे धीरे इसके साथ क्या होता है। वाओ, इमेज गायब हो गई, इमेज गायब हो गई, इमेज चली गई कहीं और। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? मैंने ये देखो, अब मैं थर्ड रे यूज कर रहा हूँ, दैट इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब देखो ये दोनों रेज दिख रही है तुम्हें, जब मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है दोनों रेज, रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल जा रही है एक दूसरे से, और ये कहाँ पे मीट करेगी? पैरेलल रे कहाँ पे मीट करती है? कहाँ पे मीट करती है पैरेलल रेज? इन्फिनिटी, यस। सो यू डोंट सी इमेज, यू डोंट सी इमेज, इमेज तो इन्फिनिटी पे बनेगी कहीं पे दूर। हाउ विल बी द नेचर ऑफ द इमेज? इट विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड, क्योंकि इमेज कहाँ पे जाके पता नहीं दोनों रेज मिलेगी नीचे, बियॉन्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। सो वी डोंट नो, द नेचर ऑफ द इमेज विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड। कैन आई पुश दिस object more towards the right, towards optical center? Let's see. Hey, what is happening? What is happening? The image is becoming virtual and erect, and it is coming on the left side of the lens. अब इमेज कहाँ पे आ गई? इमेज आ गई इन फ्रंट ऑफ द लेंस, और कैसी हो गई इमेज? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। मतलब इन्फिनिटी से डायरेक्टली रियल इमेज वर्चुअल बन गई और लेंस के लेफ्ट में आ गई, लेंस के पहले, लेंस के फ्रंट में आ गई, एंड इट बिकेम वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैग्नीफाइड तो अभी भी है वो, यू सी। Do you see that change, or you don't see the change? ठीक है, समझ में आया? इसकी लिंक डालता हूँ, तुम खेलो इससे, तब समझ में आएगा अच्छे से।
ठीक है, सिमुलेशन से तो समझ में आया तुमको कि क्या होने वाला है, लेकिन इसके रे डायग्राम्स बनाने कैसे हैं, इसके लिए मैंने तुम्हें ऑलरेडी पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे दिए। ठीक है, लेकिन लेकिन ये जो हमने सिमुलेशन देखा, या फिर जो हमने, अगर सी इफ़ यू आर गुड विथ यू नो विजुअल मेमोरी, तो तुम्हें अगर ये देख के समझ में आ रहा है अच्छे से, सो तुम्हारा लर्निंग क्विक हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं आ रहा है समझ में, तो तुम ये टेबल याद कर लो। पहले टेबल लर्न करो, फिर रे डायग्राम ड्रॉ करो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि ये जो रे डायग्राम्स हम बनाने वाले हैं, इसमें हम चीटिंग करने वाले हैं। ये मैंने लास्ट टाइम भी तुम्हें सिखाया था। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू डू इट विथ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस, वी आर नॉट गोइंग टू डू ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस, वी आर गोइंग टू डू सम एडजस्टमेंट्स या चीटिंग, जो भी तुम बोलो, बट ये करना ज़रूरी है। बिकॉज ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन जब नहीं करते हैं ना, तो रे टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, मतलब पैरेलल नहीं जाती। ठीक है, और जो डिस्टेंस है फोकस का, सेंटर ऑफ कर्वेचर का, वो हम मेजर नहीं कर रहे हैं, वो हम अंदाजे से बना रहे हैं। सो जब हम अंदाजे से रे डायग्राम्स बनाते हैं, तो थोड़ी चीटिंग तो करनी पड़ती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पहले ये टेबल लर्न कर लो। इफ़ यू लर्न द टेबल, इट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू ड्रॉ द रे डायग्राम, क्योंकि तुम्हें पता है कि इस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रहेगा, तो इमेज की पोजीशन कहाँ पे होगी, इमेज का नेचर क्या होगा, इमेज की साइज क्या, तुम्हें ऑलरेडी पता है। सो विद दिस प्री कंसीव्ड information, if you go and draw the ray diagram, it can never go wrong. Then you can do some changes here and there in the position of focus, right, position of image object, you can do some changes, and that is what I want to teach you, that is the trick. ठीक है, ये ट्रिक को अच्छे से समझो। सो पोजीशन ऑफ इमेज, अच्छा, अब हमने देखा जस्ट वो सिमुलेशन में देखा कि जब ऑब्जेक्ट को हम बहुत दूर रख रहे थे, तो इमेज वॉज वेरी नियर टू द फोकस। मतलब ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा, तो पोजीशन ऑफ इमेज होगी एट फोकस, एट फोकस। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज विल बी एट फोकस, नेचर विल बी रियल and inverted, and size will be point sized or highly diminished. ठीक है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, मैं पहले ये क्यों बनवा रहा हूँ तुमसे, इसके पीछे रीज़न मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, सो पहले टेबल कंप्लीट करो, फिर रे डायग्राम्स बनाएंगे फटाफट एक के बाद एक, और तुम ही बना लोगे, मैं तो तुम्हें सिर्फ 2 रे डायग्राम बताने वाला हूँ। ठीक है, then you have to make all the ray diagrams. Okay, when the object is at infinity, image will be at focus, the nature of image will be real and inverted, the size of the image will be point sized or highly diminished. When the image will be beyond c, इमेज को थोड़ा पास लाए हम लोग, बियॉन्ड सी दिख रही है अब इमेज, तो सॉरी ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट सॉरी तो इमेज तुम्हारी बनेगी, अरे क्या मैं तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हूँ, ये देख लो यहाँ पे, सी दिस इज बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, तो इमेज कहाँ पे बन रही है, अब इमेज फोकस से थोड़ी राइट में चली गई, बिटवीन एफ एंड टू एफ, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी, रिमेंबर दिस। ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, द इमेज इज बिटवीन F and C. F is focus, C is center of curvature. वहाँ पे 2F लिखा था, 2F और C एक ही बात है। The nature will be same, real and inverted. The size will be diminished. Not highly diminished, but diminished. अच्छा, when the object is at C, कोई बता सकता है जब C पे रखूँगा तो इमेज कहाँ पे बनेगी? Yes, at C. Yes, at C. ठीक है, when the object is at C, image will be also at C, but on the other side of the lens, behind the lens.
The nature of the image will be same, real and inverted, and the size will be same as that of the object, है ना? इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज सेम हो जाएगी. अच्छा, बिटवीन सी एंड एफ अब मैं और पुश कर रहा हूँ, मेरे ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ. देखो क्या हो रहा है. बिटवीन सी एंड एफ रख दिया मैंने, इमेज चली गई बियॉन्ड सी ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस. इमेज चली गई बियॉन्ड सी. ठीक है, अभी भी नेचर सेम है, रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन साइज क्या हो गई, मैग्नीफाइड. ठीक है. एट एफ अगर मैं फोकस पे रख देता हूं मेरे ऑब्जेक्ट को, तो इमेज बन जाती है इन्फिनिटी पे. एट इन्फिनिटी दोनों रेज ऑफ लाइट पैरेलल जा रहे थे, याद है. इट विल स्टिल बी रियल एंड इन्वर्टेड, बट इट विल नाउ बी हाईली मैग्नीफाइड इन साइज. ठीक है. और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जब बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर होगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट when it will be between f and optical center, क्या होता है, पूरा पिक्चर ही चेंज हो जाता है. पूरा पिक्चर ही चेंज हो जाता है. ठीक है. जब भी ऑब्जेक्ट एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आएगा, द इमेज विल बी इन फ्रंट ऑफ द लेंस. कहाँ पे ये नहीं बताना है तुम्हें, इन फ्रंट ऑफ द लेंस बोलना है, क्योंकि वो तो हर जगह पे पोजीशन चेंज होती रहेगी. इन फ्रंट ऑफ द लेंस, एंड इट विल बी ओनली दिस पोजीशन हैज वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर. It will be virtual and erect, and it will be highly magnified. या सिर्फ मैग्नीफाइड लिखोगे तो भी चलेगा. या बट दिस इज द कंप्लीट टेबल. ये पूरा टेबल है तुम्हारा. बिफोर ड्रॉइंग द रे डायग्राम्स यू गॉट द टेबल रेडी. ये एक अचीवमेंट है, और इसको लर्न कर लिया तुमने समझ के, तो बस फिर और क्या चाहिए. अभी रे डायग्राम्स तो हम लोग चैंपियंस हैं. ठीक है, प्लॉट करें रे डायग्राम्स. चलो, 6 पोजीशंस. ये तुम्हारा स्केलेटल स्ट्रक्चर है, मतलब रे डायग्राम. प्रिंसिपल एक्सिस और लेंस, ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर. बेयर बोन्स, कुछ भी नहीं है इसमें. इसमें हम रे डालेंगे, 2 रेज. ठीक है, तो ऐसे 6 स्ट्रक्चर में रेडी कर देता हूँ. तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे पास भी ऐसी डिजिटल नोटबुक होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए यार, होनी चाहिए ना. तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा. तुम क्यों ऐसे पुराने प्री हिस्टोरिक तरीके से लिख रहे हो? मुझे हंसी आती है तुम लोग के ऊपर, बेचारे बच्चे. डिजिटल नोटबुक होती है अगर तुम्हारे पास, तुम हो जाएगी तो नॉर्मल बुक जो यूज मतलब नॉर्मल बुक ज़्यादा फिर ये
नॉर्मल बुक क्या ज़्यादा क्या? सर हमें ना इंग्लिश में पिछले टाइम एक चैप्टर था कि हम्म। उसमें जो डेट है इस ईयर से 45 इयर्स बाद की डेट है, और तब बुक सारे जो होंगे वो डिजिटल पे होंगे। हाँ, फिर तो क्या होता और था? जब लोगों को ऐसे जो हमारे अभी जैसे बुक्स वैसे मिलेंगे तो वो लाइक उनके लिए जो ये होगा लिखना डिफिकल्ट होगा। इन्वेंशन। नहीं सर, उनको जब वो बुक्स मिलेंगी अच्छा उनके अच्छा, लिए उनको ई लगेगा बुक्स ये होगी। क्या है यार, ये मतलब फिजिकल बुक, ओह माय गॉड। हाँ सर। बट यार ये भी सोचो, इससे कितना तुम्हारा पेपर सेव होता है। और सर जब हम जॉब करने जाएंगे तब हम इसमें कुछ काम नहीं करेंगे, हम सब कंप्यूटर में ही काम करेंगे। फिर तुम्हारा पूरा, मतलब जिस तरीके का फ्यूचर है, इफ़ यू वांट टू बी फ्यूचर रेडी, यू हैव टू यू नो लर्न ऑल दिस टेक्निक्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ भी। ठीक है, मल्टीटास्किंग्स, सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटीज़, फिर हैंड्स ऑन शॉर्टकट्स, ये सब तुम्हें आना चाहिए, तो अभी से ट्रेन होना चाहिए तुमको। ये क्या तुमको बुक वुक के साथ बांध के रखा है गाय की तरह? क्या यार तुम लोग, मतलब क्या बोलूँ, मुझे मतलब आई फील वेरी पिटी ऑन यू गाइस समटाइम्स। ठीक है, बट आई फील दैट, आई रियली फील के इट शुड बी लिटिल बिट मोर एडवांस्ड। कुछ है नहीं, देखो कुछ नहीं है। ये जो टेक है ना, ये व्हाट दिस आई एम यूजिंग, दिस वन, दिस इज़ अ ग्राफिक टैबलेट। ठीक है, मैं इसके ऊपर कुछ भी कर रहा हूँ और ये मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है तुमको। और वो कितने का आता है ग्राफिक टैबलेट? मैंने छोटा ग्राफिक टैबलेट लिया है सबके लिए, मेरे सबके पास, सारे टीचर्स के पास है। 3000 में आता है, 2000 3000, कुछ नहीं है इसकी कॉस्ट यार। इट इज़ नथिंग, इट इज़ नथिंग। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो 7000 वाला है, बिकॉज थोड़ा बड़ा है। बट इट इज़ सो ईजी। पेन है, कभी इंक खत्म नहीं होती। इंक किसका? निब इसके साथ आती है, इसके साथ निब आती है, अराउंड 10 पीसेस आए, अभी ख़त्म नहीं हुई मेरी, 2 साल से घिस रहा हूँ। सो कुछ कुछ भी, कोई है ही नहीं, कुछ कॉस्ट ही नहीं है इसका। और ये जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ वन नोट। वन नोट में सारी तुम्हारी नोटबुक्स, मतलब मेरे सारे कोर्सेज, 8 9 10 11 12, ऑल सब्जेक्ट, PCM, सबके नोटबुक्स मेरे एक साथ है। मुझे पूरा वो जो तुम कूली बन के घूमते हो ना, स्कूल जाते हो बड़ा बोझ लेके, वैसे घूमने की ज़रूरत नहीं है, मेरे लैपटॉप में सब कुछ आ गया। कोई भी डिवाइस खोलूँ, कहीं से भी सिंक करूँ तो खुल जाता है। सो वाई नॉट यार, क्यों ऐसे गधा मजदूरी, मुझे नहीं समझ में आ रही। आई एम रियली अगेंस्ट दिस नाउ। यू शुड बी डिजिटल यार, बहुत हो गया। हाँ ठीक है, बुक्स तुम्हारा लेजर है कि तुम्हें बुक में लिखना है, वो तुम्हारा, इट इज़ योर ओन चॉइस, इट शुड बी अ चॉइस, इट शुड नॉट बी अ कंपल्शन। अब जस्ट इमेजिन अगर तुमने ये बनाया है, हाउ इजीली आई कैन चेक इट। तुम्हें मुझे फोटो भेजने की ज़रूरत नहीं है। वेन यू शेयर दैट थिंग विथ मी, मैं तुम्हारी बुक कभी भी ओपन करके चेक कर सकता हूँ तुमने क्या लिखा, क्या गलत है क्या सही है, कभी भी। इट इज़ सो ईजी, लिंक मेरे पास है, मैं खोल दूँ, ये इसकी बुक है, चलो चेक कर लिया। वाई नॉट? आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर कोई बच्चा मेरे को बोलता है ना कि सर आई एम रेडी, मेरे पेरेंट्स रेडी है इन्वेस्ट करने के लिए, एंड आई मतलब वो खुद भी अगर टेक एफिशिएंट है और वो कर सकता है, मैं उसको अलाउ करूँगा। मैं बोलूँगा तू बना बेटा, मेरा काम तो इसी के ऊपर कर, कोई टेंशन नहीं। आई विल ब्रेक ऑल द रूल्स फॉर टेक। ओके, द फर्स्ट पोजिशन, पहले पोजिशंस भी लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट at infinity. Second position,
object beyond C. Third position, object at C. Fourth position, object between C and F. Fifth position, object at F. Sixth position, object between F and O. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन विद द रे डायग्राम। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो दो रेज ऑफ लाइट आएगी पैरेलल टू ईच अदर, बट ये कहीं से दूर से आ सकती है, राइट। सो क्या करूँगा मैं, दो रेज ऑफ लाइट बनाऊंगा, मैं रफ बना रहा हूँ, स्केल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मेजरमेंट का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मेरी लाइन टेढ़ी मेढ़ी होगी तो मैं सिर्फ उसका जो इन्फेरेंस है वो लेना है। You don't have to draw like me. You have to draw neatly. You have to use scale in your books. Okay. एक ray of light आएगी towards the focus. Sorry, towards the focus. इसमें जब towards the focus आती है तो ray of light कहाँ चली जाती है? नहीं, क्या बात कर रहे हो, थ्रू द फोकस, थ्रू द फोकस, टूवर्ड्स द फोकस हो ही नहीं सकता, इसमें गलत है। थ्रू द फोकस, तो यहां पे मैं फोकस बनाता हूं, इसके थ्रू एक रे ऑफ लाइट आ रही है और दूसरी आ रही है टूवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर। दोनों स्ट्रेट रेज है, ये दोनों इन्फिनिटी से आ रही है। टूवर्ड्स द फोकस, सॉरी थ्रू द फोकस जो आएगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी, और ऑप्टिकल सेंटर से जो पास करेगी वो सीधी सीधी जाएगी विदाउट एनी डिविएशन। दोनों रे ऑफ लाइट मीट कर रही है। चालाकी देखो मेरी, मैंने कोई भी एफ या ये कुछ भी मार्क नहीं किया यहाँ पे, सीधा क्या करूँगा, जहाँ पे ये मीट कर रही है ना रे ऑफ लाइट, मैं बनाऊँगा ऐसा, ओह रियल है ना, मैं बनाऊंगा रियल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विल बी रियल। इधर नाम लिखूंगा ए डैश, इधर नाम लिखूंगा बी डैश। समझ में आया क्या किया मैंने? फ्री हैंड में बना दिया, कुछ है ही नहीं, क्योंकि मुझे सब पता था ना इसके बारे में। आई न्यू कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। अच्छा ये पॉइंट क्या है, व्हाट इज दिस, this point is focus F, this point is the focus, image बनेगी focus पे, it will be real inverted and it will be highly diminished, it will be highly diminished, ठीक है। चलो अब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ मेरा फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। ये साइड कुछ फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाना नहीं, ठीक है। सबसे पहले रे डायग्राम बनाओ, एक रे ऑफ लाइट जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन विल पास थ्रू द फोकस, दूसरी रे ऑफ लाइट जाएगी ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू और अनडिविएटेड जाएगी। ठीक है, ऐसे करके मीट कर रही है, इसको मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। सो ये तुम्हारा फोकस है, इसका पोजीशन क्या है, बिटवीन सी एंड एफ है ना। हाँ सर। बस तो यहाँ पे सी बना दो, चालाकी, सब खुश, ए डैश बी डैश। बट ये गलत है यार, कुछ तो गलती हुई है इसमें, क्योंकि ये तो मैग्नीफाइड आ रही है, मतलब मेरा
मेरे लाइन स्ट्रेट नहीं है। चलो फिर से बनाते हैं, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आई कैन डू इट अगेन। So what I do is I change the position of my focus. I shift my focus little near. ठीक है? And accordingly I shift my center of curvature also little near. And I draw my object over here. एक रे ऑफ लाइट में डालता हूँ पैरेलल। प्लीज़ ड्रॉ करो सब लोग, ठीक है? यहाँ पे मैं फोकस बना देता हूँ, ये जाएगी फोकस से। और दूसरी रे ऑफ लाइट जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। यस, दिस इज परफेक्ट। ये ऑप्टिकल सेंटर से सीधी अनडेविएटेड जा रही है और यहाँ पे बन रही है मेरी इमेज ए डैश बी डैश। ये है मेरा फोकस और ये है मेरा ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर बिटवीन एफ एंड सी, एंड इट इज स्टिल डिमिनिश्ड, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। समझ में आया? तो ऐसी गलतियां होती है यार, फ्री हैंड करोगे तो गलती होगी ना। विदाउट कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं तो, विदाउट कैलकुलेशन एज वेल एज फ्री हैंड। तुम्हारे पास एटलीस्ट स्केल तो है, तो यू हैव टू कीप अ रूम फॉर एडजस्टमेंट। यू कैनॉट से कि नहीं मेरे को परफेक्ट चाहिए रे डायग्राम, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। ऐसा थोड़ी होता है। बी फ्लेक्सिबल गाइस, बी फ्लेक्सिबल इन लाइफ, ठीक है? नेक्स्ट पोजीशन में ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे मैं F और C बना देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, सब अंदाजे से। C पे, ऑब्जेक्ट C पे देखो, इसमें चालाकी तो बहुत भरपूर है। देखो यहाँ पे प्लीज F C, मैं क्या करूँगा पता है? जितने साइज का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ना, उतने ही साइज का यहाँ पे इमेज बना दूंगा मैं, और फिर सीधा सीधा ज्वाइनिंग करना है। सीधा ज्वाइनिंग मतलब एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाके सीधा इसके सिर पे टच करेगी, ठीक है? दूसरी रे ऑफ लाइट जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और फिर फोकस से पास करके सीधा इसके सिर को टच करेगी। कितना सुंदर झोल, मतलब 2 सेकंड में रेडी हो गए। ए बी, A dash B dash. Image will be real inverted of the same size. Object between C and F. अब पास आ गया ऑब्जेक्ट, ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट, ठीक है? सी और एफ मैंने दूसरी साइड भी बना दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा कि द रे ऑफ लाइट विल गो, द ऑब्जेक्ट द इमेज विल बी फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। इमेज दूर जा रही है ना, सो यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगी, पास करेगी फोकस से, और दूसरी रे ऑफ लाइट पास करेगी ऑप्टिकल सेंटर से। झोल हो गया, गलत हो गया, फिर से बनाओ। मुझे ऑप्टिकल सेंटर वाली स्ट्रेट लग रही है रे ऑफ लाइट। सी को थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं, सी को शिफ्ट कर देते, सी को बाद में बनाओ। इसमें एक काम करो, ठीक है? यस, फेयर, दिस इज स्ट्रेटर। सी उधर ही रहेगा। this will be the image A dash B dash. The image will be real inverted and magnified. बन रही है क्या तुम लोग की इमेजेस? बन रही है ऐसे या नहीं बन रही है? गुड, वेरी नाइस। ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे।
जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है वी नो वन थिंग, 2 रेज ऑफ लाइट हमें बनानी है और ये दोनों रेज ऑफ लाइट पैरेलल होनी चाहिए एक दूसरे से, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट पैरेलल जाके फोकस से पास करेगी, एक रे ऑफ लाइट सीधा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, दे विल बी पैरेलल, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, रियल इन्वर्टेड हाईली मैग्नीफाइड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी नियर बिटवीन एफ एंड ओ, एक रे ऑफ लाइट सीधी जाएगी, फोकस से पास करेगी, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, और ये दोनों को पीछे की तरफ अगर प्रोड्यूस किया तो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इमेज बनेगी। सर यस। सर फोर्थ वाले केस में मेरे बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड आ रही है और वो बहुत पीछे जा रही है, ठीक है। थोड़ा ऑब्जेक्ट की पोजीशन सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है ना उसको थोड़ा एडजस्ट करो। देखो जैसे कि यहाँ पे ये तुम्हारा सी और एफ के बीच में लेके आता हूँ इसको, देखो बहुत पीछे जा रही है क्योंकि तुम फोकस के बहुत पास रख रहे हो उसको। थोड़ा 2F मतलब सी के पास रखो, थोड़ा सी के पास रख के देखो आएगी, देखो ठीक है। जितना तुम एफ के पास पुश करोगे उतना फिर इमेज इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी बहुत बड़ी, बट अगर बीच में या फिर सी के पास रखोगे तो ज़्यादा एक्यूरेट आएगी। सो लास्ट पोजीशन में ऑब्जेक्ट एफ और ओ के बीच में था, इमेज in front of the lens, virtual, erect and magnified. I want all of you to send me all your ray diagrams picture right now on my WhatsApp. Take a picture and send me. I just want to check how you have done it. Come on guys. इट्स ओके अगर गंदा बना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम सीख रहे हो, ठीक है। उसको इसके पास रखता हूँ तो वो सी पे बन जाती है, मतलब नेक्स्ट वाले वर्चुअल सी पे बन रही है। 3-4 बार ट्राई करो, हो जाएगा एक बार। Gauri, I got your ray diagrams. I want you to try all the ray diagrams with pencil and scale, okay? क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे रफ में नहीं चलेगा, ये तो मैंने तुम्हें बताया फॉर द पर्पज़ ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, बट एग्ज़ाम में यू विल हैव टू ड्रॉ विद पेंसिल एंड स्केल, नॉट मेजरमेंट्स बट पेंसिल एंड स्केल। ओके, वेरी गुड। कृष्णा, 4th वाले में तूने इमेज नहीं बनाई, लोकेशन भी नहीं दिया है, रे डायग्राम कंप्लीट कर 4th, 5th और 6th।
Okay, who's this Nitish? You all guys need practice, हाँ. ऐसा मत सोचो कि मैंने एक बार रे डायग्राम बना दिया बस हो गया मेरा काम. तुम्हें ये सब प्रैक्टिस करते रहना. रे डायग्राम्स. गुड. जिसने जिसने भेजा है सबका चेक कर रहा हूँ. डोंट वरी. गुड. लेंस थोड़ा अच्छे से बनाओ. सुंदर लेंस बनाओ प्लीज. क्रूकेड लेंस मत बनाओ. विथ कॉनकेव लेंसेस. सो कॉनकेव लेंस में ना सिंपल हिसाब है. थिंग्स आर सिंपल विथ कॉनकेव. सिर्फ दो रे डायग्राम है, दो पोजिशन है. नंबर 1, ऑब्जेक्ट एनीवेयर, सॉरी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी and number 2, object anywhere between infinity and optical center. ठीक है. ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होगा कॉनकेव लेंस के, सो दो रेज ऑफ लाइट आएगी. एक टूवर्ड्स फोकस जाएगी, टूवर्ड्स फोकस, बट वो फोकस को मीट नहीं करेगी. इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन. और दूसरी रे ऑफ लाइट जाएगी थ्रू ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है. अब ये दोनों रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन एक दूसरे से दूर जा रही है. दे कैन नॉट मीट ईच अदर behind the lens. So what we have to do, we have to produce them behind. So these rays of light will meet at each other in front of the lens. यहाँ पे A dash B dash. ठीक है. A dash B dash. So ये जो ऑब्जेक्ट बना है, it will be formed at the focus. ये फोकस पे बनेगा ऑब्जेक्ट. and the object will be image, and the image will be virtual, erect and diminished and at focus. ठीक है. सो जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होती है तो इमेज फोकस पे ही बनती है. किसके लिए? कॉनकेव के लिए, कॉनकेव लेंसेज के लिए. एंड इट इज़ वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. अच्छा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर between infinity and optical center, so suppose ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया यहाँ पे, कहीं भी रखूँ मैं. ठीक है. क्या होगा देखो,
एक रे ऑफ लाइट जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस and it will appear to be coming from the focus behind, sorry, in front of the lens. और एक रे ऑफ लाइट जाएगी थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. दोनों रेज ऑफ लाइट एक दूसरे के दूर जा रही है, डाइवर्ज हो रही है, बट वेर दे मीट, इसको थोड़ा स्ट्रेटन कर देता हूं मैं. यस, सो दे मीट ओवर हियर. ए डैश बी डैश. ठीक है. सो कैसी इमेज बन रही है यहाँ पे? इमेज विल बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. तो बस ये दो ही पोजीशन है, दो ही रे डायग्राम्स है. मतलब कॉन्केव लेंसेज के लिए the image is always virtual, erect and diminished, virtual, erect and diminished, always, no matter where you put your object. अच्छा, this image will be formed between F and O in front of the lens. The previous image when the object was at infinity formed at the focus. मतलब image हमेशा focus और optical center के बीच में ही बनती है. बस सिर्फ दो रे डायग्राम, दो पोजिशंस एंड सेम नेचर ऑफ इमेज. सो देर इज वन लेंस विच ऑलवेज गिव्स यू वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेजेस. इट कैन नेवर गिव यू मैग्निफाइड इमेज. दैट लेंस इज अ कॉन्केव लेंस. कॉन्केव लेंस, रिमेंबर दैट. बना लो दोनों रे डायग्राम्स. Let's go ahead and see the sign conventions. Sir, Yes. sir, if in the first one, Mm-hmm. the object images at A dash, B dash, then sir, why do you have extended the parallel line? Because without extending the parallel lines, how will you know where the image will be formed? A dash, B dash. अगर मैं इसको एक्सटेंड नहीं करता पीछे, तो कैसे पता चलता कि ये एक्सटेंडेड लाइन ये वाली ऑप्टिकल सेंटर वाली रे ऑफ लाइट को कहाँ पे मीट करती है और इमेज यहाँ पे बनेगी? ये कैसे पता चलेगा? सो यू हैव टू एक्सटेंड दैट. सो बेसिकली बोथ द लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट, both the rays of light will not meet in reality. They will appear to be meeting in front of the lens in both the ray diagrams of concave lenses. The rays of light will appear to meet at a point जहाँ पे तुम्हारी इमेज बनेगी. इसलिए पीछे की तरफ एक रे को लाना ही पड़ता है. वर्चुअल इमेज है ना ये. So the rays of light will never meet actually. They will only meet virtually. और वर्चुअल रे ऑफ लाइट हमेशा लेंस के फ्रंट में मीट करती है. ठीक है. ओके, कूल. चलो, कुछ इन्फॉर्मेशंस है जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ और ये सब तुम्हें नोट डाउन करनी है. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, वन बाय वन बताता हूँ. सेम जो हमने मिरर फॉर्मूला में किया था वैसे ही है ये. ठीक है. ये हो गया मतलब ख़त्म तुम्हारा. सिर्फ अभी थोड़े न्यूमेरिकल्स करेंगे, चैप्टर ख़त्म. सबसे पहले प्लीज़ नोट डाउन द लेंस फॉर्मूला एंड द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर लेंसेस. ठीक है. What is the lens formula? I will also give you a little bit of commentary behind while you are noting it down. Lens formula. Lens formula क्या है? 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon F. Can anyone tell me the difference between lens formula and mirror formula? Sir, in mirror formula it was 1 by V plus 1 by U. मिरर फॉर्मूला में बीच में प्लस साइन थी, यहाँ पे माइनस साइन है. ध्यान रखना है इसको. मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ मतलब वो तुम्हें लिखना है.
ठीक है, लेंस फॉर्मूला सबने लिख लिया। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला इज मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। एक्सक्यूज मी सर, यस, सर ये लेंस फॉर्मूला पोजीशन बताता है और ये मतलब ये क्या बताता है? तुम्हें वी यू और एफ तीन क्वांटिटी पता है? वी यू और एफ क्या होता है? वी होता है इमेज डिस्टेंस, यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और एफ होता है फोकल लेंथ। ठीक है, अगर ये तीनों में से दो चीज दी है और तीसरी मिसिंग है तो ये फॉर्मूला से मिल जाएगी ना। यू अंडरस्टैंड? दो चीज दी है, तीसरी मिसिंग है तो फॉर्मूला से मिल जाएगी। नेक्स्ट फॉर्मूला इज मैग्निफिकेशन एंड दिस इज मोस्ट यू कैन से सिग्निफिकेंट फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन का सिंबल है m विच इज इक्वल टू v बाई यू और h2 बाई h1 और hi बाई ho। v बाई यू मतलब इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, h2 बाई h1 मतलब इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, hi बाई ho मतलब इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, सेम थिंग। Can you tell me the difference between the magnification formula of mirrors and lenses? Sir, image distance was negative in mirror formula, in magnification in mirrors. Yeah, in mirror formula the magnification formula was minus v by u। यहाँ पे सिर्फ v by u है, यहाँ पे सिर्फ v by u है। इसका पूरा तुम डेरिवेशन पढ़ोगे क्लास 12th में। अभी के लिए तो सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है। ओके, लिख लिया सबने, चलो आगे बढ़ते हैं। साइन कन्वेंशंस, इसको भी नोट करो, 3 पॉइंट है। पहले तीनों साइन कन्वेंशन के पॉइंट को नोट करो, फिर मैं बताता हूँ आगे क्या लिखना है। साइन कन्वेंशन, सेम साइन कन्वेंशन हमने मिरर में पढ़ी थी। All distances are to be measured from the optical center of a lens। सारे डिस्टेंस हमें ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करना है। मतलब ऑप्टिकल सेंटर विल बी लाइक नंबर लाइन का ज़ीरो, क्योंकि नंबर लाइन के ज़ीरो से हम कैलकुलेशन करते हैं। नंबर लाइन के ज़ीरो से आगे जाते हैं तो पॉजिटिव, पीछे आते हैं तो नेगेटिव। वैसे ही all distances are to be measured from the optical center of a lens। Next, distance is measured towards the right in the direction of incident ray of light। Distance is measured towards the right in the direction of incident ray of light। ये देखो, ये लेंस है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट राइट की तरफ है। राइट की तरफ जितने भी डिस्टेंस मेजर होंगे फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर विल बी पॉजिटिव, आर टेकन एज पॉजिटिव, आर ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। डिस्टेंसेज मेजर्ड टूवर्ड्स राइट इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आर ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब distances measured toward left against the direction of incident ray of light are always taken as negative। ऑप्टिकल सेंटर से राइट में पॉजिटिव, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में नेगेटिव। Third, distances measured above principal axis are always taken as positive। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितने भी डिस्टेंस होंगे, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव रहेगी, लेकिन इमेज अगर इन्वर्टेड है तो उसकी हाइट नेगेटिव होगी, बिकॉज इट इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। सो डिस्टेंसेस मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। वाइस वर्सा में लिख दिया। सो बेसिकली अगर ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस है
और ये लेंस है, ठीक है। सो यहाँ के डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होंगे, यहाँ के डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होंगे, और ऑप्टिकल सेंटर से ही हमें सारे डिस्टेंस मेजर करना है। ऊपर के डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होंगे और नीचे के डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होंगे, सेम लाइक व्हाट वी हैव डन विथ मिरर्स, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन है। अभी इससे कुछ कंक्लूजन हम ड्रॉ करते हैं, तो वो कंक्लूजन भी तुम्हें लिखना है, सारे कंक्लूजन लिखेंगे हम, एंड दैट विल क्लियर योर आइडिया रिगार्डिंग द न्यूमेरिकल्स ऑन यूज ऑफ लेंस फॉर्मूला। आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं, बट डोंट फॉरगेट टू नोट डाउन अ सिंगल पॉइंट। अगर कुछ भी यहाँ से मिस हो गया ना, आगे तुम्हें न्यूमेरिकल्स में इश्यू होगा। कंक्लूजन्स शुरू करते हैं। कंक्लूजन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u is always taken as negative। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमेशा हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, सोचा है कभी? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के पहले होता है, लेंस के फ्रंट में होता है, लेंस के लेफ्ट में होता है। मतलब ऑप्टिकल सेंटर से तुम्हें मेजरमेंट करने के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, यू हैव टू गो टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। सपोज ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे रखता हूँ, दिस इज माई ऑब्जेक्ट ए बी, तो मेरा मेजरमेंट यहाँ पे होगा और ये साइड तो नेगेटिव है। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो कॉन्वेक्स लेंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का सिंबल u होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, इमेज डिस्टेंस जिसका सिंबल है v इज पॉजिटिव फॉर रियल इमेजेस, क्योंकि रियल इमेजेस हमेशा लेंस के पीछे राइट में बनती है। इमेज डिस्टेंस फॉर रियल इमेजेस इज ऑलवेज पॉजिटिव and image distance v is negative for virtual images। वर्चुअल इमेजेस के लिए इमेज डिस्टेंस v क्या होता है, नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस v is negative for virtual images। इमेज डिस्टेंस v इज नेगेटिव फॉर वर्चुअल इमेजेस, ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें और ऐड करनी है तुम्हें। फॉर कॉनकेव लेंसेज v इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। कोई मुझे बता सकता है क्यों? फॉर कॉनकेव लेंस v हमेशा नेगेटिव क्यों होता है? Because it always forms virtual images. It only forms virtual images. Very good. For concave lenses, v is always negative. Next point, third conclusion, focal length is positive for convex lenses। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंसेज का रियल फोकस होता है और जो लेंस के राइट में होता है, लेंस से राइट में जो भी हम मेजर करेंगे वो पॉजिटिव डिस्टेंसेस है। सो फोकल लेंथ इज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंसेज। कॉन्वेक्स लेंसेज की फोकल लेंथ f हमेशा पॉजिटिव होगी। जैसे ही क्वेश्चन आता है कॉन्वेक्स लेंस होता है और f की वैल्यू दी है, तुम पॉजिटिव में ही लिखोगे शुरुआत में ही साइन कन्वेंशन अप्लाई कर देना है।
फिर फॉर्मूला में करेक्ट साइन के साथ वैल्यू डालोगे तो आंसर ऑटोमेटिकली करेक्ट आएगा. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस. एंड फोकल लेंथ is negative, always negative for concave lenses because they have virtual focus. I hope all of you are noting it down. Anshul, please on your cam. Excuse me, sir. Yes. The object height means the size of object or the height at which it is kept? No, size of object. Object height मतलब size of object. ठीक है. Next point. H1 object height is always positive. क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव. तो ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव. H2 image height is positive for virtual images and negative for real images. Image height अगर वर्चुअल है इमेज तो इरेक्ट होगी, इरेक्ट होगी तो अबाउ प्रिंसिपल एक्सिस होगी. इसके लिए इमेज हाइट H2 फॉर वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज पॉजिटिव. बट अगर रियल इमेज हुई तो वो इन्वर्टेड होगी. रियल एंड इन्वर्टेड गोज टुगेदर. वर्चुअल एंड इरेक्ट गोज टुगेदर. So real image will always be negative. Your voice is cutting. Can you please repeat? I can't hear you clearly. Your voice is breaking a lot. You type your question. Type your question if you want. I cannot hear you. Image height is positive for virtual images, negative for real images. Sixth, remember, sixth conclusion बहुत important है. अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी है, न्यूमरल वैल्यू, नॉट द साइन, साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लस माइनस नहीं, सिर्फ वो नंबर अगर 1 से बड़ा है तो इमेज मैग्नीफाइड होगी. अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी है, जस्ट द न्यूमरल वैल्यू, देन इमेज विल बी डिमिनिश्ड. और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू एग्जैक्टली 1 है तो इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये जितना हाईलाइट किया प्लीज नोट कर लो. आई विल शो यू, वेट, आई विल शो द रिमेनिंग कंक्लूजन्स आफ्टर वी कंप्लीट दिस. पहले ये नोट कर लो सब लोग. अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है तो इमेज मैग्नीफाइड होगी. अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है तो इमेज डिमिनिश्ड होगी. अगर मैग्निफिकेशन एग्जैक्टली 1 है तो इमेज सेम साइज की होगी एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. मतलब ये मैग्निफिकेशन की न्यूमरल वैल्यू और साइन तुम्हें नेचर ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज बता देगी. ओनली मैग्निफिकेशन इज इनफ टू टेल यू द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज. कैसे, ये मैं तुम्हें बताता हूं. देखो, अगर मैग्निफिकेशन की साइन देखोगे तुम, साइन पॉजिटिव है तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी. क्योंकि पॉजिटिव है अगर साइन मैग्निफिकेशन की, इसका ये मतलब है कि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है. और इमेज जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है तो वो इरेक्ट होती है और इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होती है. सो न्यूमरल वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन टेल्स अबाउट इट्स साइज, बट द साइन प्लस और माइनस टेल्स अबाउट इट्स नेचर. अगर मैग्निफिकेशन की साइन नेगेटिव है तो मतलब इमेज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है, मतलब वो इन्वर्टेड है. इन्वर्टेड है मतलब रियल भी है. सो नेगेटिव मैग्निफिकेशन है मतलब इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड. फॉर एग्जाम्पल m-3 है, सपोज m-3 है. इसका मतलब देखो 3 क्या होता है, 3 इज ग्रेटर देन 1, मतलब इमेज मैग्नीफाइड है.
बट आगे माइनस की साइन भी है, मतलब इमेज इन्वर्टेड भी है, तो रियल भी होगी. सो रियल एंड इन्वर्टेड. सो m-3 है, मतलब रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज है. ठीक है. सो ये सारे कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ समबडी वांटेड टू सी सम प्रीवियस पॉइंट्स. देखो, चेक कर लो सब सही लिखा है गलत लिखा है. ठीक है, डन. चलो आगे बढ़ते हैं. वी आर डन विद द साइन कन्वेंशंस एंड द लेंस फॉर्मूला. दोनों लेंसेज के सारे रे डायग्राम्स यूज हो गए. यूजेस आते हैं, काफ़ी बार यूजेस आते हैं. लेंसेज का यूज़ होता है स्पेक्टिकल्स में. स्पेक्टिकल्स मतलब आई ग्लासेस. ठीक है. जो नियर साइटेड लोग होते हैं, जिसको शॉर्ट साइटेडनेस होती है, दे यूज़ कॉनकेव लेंसेज टू लुक एट द डिस्टेंस. जो फार साइटेड लोग होते हैं, दे यूज़ कॉन्वेक्स लेंसेज टू लुक एट द नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. इसके अलावा, स्पेक्टिकल्स के अलावा, लेंसेज का यूज़ कैमरा में होता है. कैमरा में लेंसेज होते हैं, तुमने देखे होंगे. माइक्रोस्कोप्स में यूज़ होते हैं लेंसेज, टेलीस्कोप्स में होते हैं, बाइनोकुलर्स में होते हैं. सो बहुत सारे जगह है जहाँ पे लेंसेज का यूज़ होता है. और एक फॉर्मूला है, ये भी तुम नोट कर लो. पावर ऑफ अ लेंस. पावर क्या होता है? पावर ऑफ अ लेंस इज इट्स कैपेसिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट. कितना डाइवर्ज कर सकता है या कन्वर्ज कर सकता है एक रे ऑफ लाइट को, कितना बेंड कर सकता है एक लेंस, उसी को उसका पावर बोलते हैं. द कैपेबिलिटी ऑफ बेंडिंग और कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट. और पावर को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं. पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर्स. पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स. और पावर का ऐसा यूनिट है डायोप्टर, कैपिटल डी. सब कुछ लिखा है तुम्हारे सामने स्क्रीन पे. पावर का ऐसा यूनिट है डायोप्टर, DIOPTRE. कैपिटल डी उसका सिंबल है. इससे हमें यह समझ में आता है कि किसी लेंथ की फोकल लेंथ जितनी छोटी होगी उतना पावर उसका ज़्यादा होगा, और फोकल लेंथ जितनी लंबी होगी उतना पावर कम होगा. शॉर्टर फोकल लेंथ मोर पावर, लॉन्गर फोकल लेंथ लेस पावर. इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं. ये फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है. यस. Please repeat your previous statement. Shorter focal length, greater power. Longer focal length, स्मॉलर पावर. और एक स्टेटमेंट देता हूं. पॉजिटिव फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स लेंसेज होती है. याद, पता है ना, कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है. दैट्स वाई दे हैव पॉजिटिव पावर. तो लिखो, एक स्टेटमेंट लिखो. कॉन्वेक्स लेंसेज हैव पॉजिटिव फोकल लेंथ, हेंस their power is positive. Convex lenses have positive focal length, hence their power is also positive. तुमने देखे होंगे चश्मे के पावर के प्रिस्क्रिप्शंस देखे होंगे अपने पेरेंट्स के या अपने खुद के या फिर अपने घर पे किसी के. उसमें माइनस और प्लस पावर होते हैं. देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख लो कभी. ठीक है. सो ये जो कॉन्वेक्स लेंसेज है उनका पावर हमेशा पॉजिटिव है बिकॉज उनकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है. सेकेंड स्टेटमेंट,
concave lenses have negative focal length and that's why they have negative power. कौन है यहाँ पे चश्मे कौन पहनता है? Who wears glasses? You, Nitish, you have positive power or negative power? Okay, positive. Really? Because generally, yes, Anshul, you raised your hand. You wear glasses. नो सर, आई थिंक सो टाइम ओवर हो गया. तो निकलो ना. टाइम ओवर हो गया, मेरे को क्यों बोल रहे हो? निकलो, जाओ. तो बता रहा था. नहीं, मत बताओ, मेरे को मत बताना नेक्स्ट टाइम ये टाइम ओवर हो गया. मेरे को शौक है यहाँ पे संडे मॉर्निंग में जक माराने का. क्या बकवास कर रहा है यार, बदतमीज आदमी. टाइम ओवर हो गया. डोंट डेयर टू से दैट नेक्स्ट टाइम. सुबह 7:30 बजे उठ के संडे मॉर्निंग, मेरे को बहुत मजा आता है. अबे इंडियन आर्मी को भी संडे की छुट्टी मिलती है, पता है क्या? मैं नहीं लेता तुम्हारे लिए, तुम्हारी स्कूल की खुजली की वजह से, क्योंकि उनको आगे भागना है. और मैं नहीं लूंगा ना तो तुम पीछे रह जाओगे. मैं दे सकता हूं तुम्हें रिकॉर्डेड लेक्चर, देख लो संडे को. इफ यू आर फीलिंग बोर्ड, गो गेट आउट ऑफ द क्लास. सो नितिश, अच्छा कौशल भी तो ग्लासेस पहनता है. कौशल, पर मेरे कंप्यूटर क्लासेस, उसको कोई पावर नहीं. अच्छा, प्रिंस भी पहनता है. प्रिंस, मैंने देखा नहीं तुम्हारा ग्लास कभी. सर मैं पहनता हूँ. तो दे हैव पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर? पॉजिटिव. पॉजिटिव? नहीं, नीतिश का अभी बोल रहे नेगेटिव है सर. नेगेटिव ही होगा यार, ये एज में नेगेटिव ही पावर आता है. तुम ना अपने लेंसेस ना ऐसा दूर से देखो, तुम्हें सब चीज़ें अगर डिमिनिश दिखती है तो मतलब नेगेटिव है. ठीक है? सर मेरे भी नेगेटिव ही है. हाँ, नेगेटिव ये एज में जनरली नेगेटिव होता है. ठीक है? दैट इज मायोपिया, जो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे शायद. ओके, कॉम्बिनेशन नहीं है. देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. एक तो कर सकते हैं हम लोग, 2-3 कर सकते हैं इनफैक्ट, एक क्यों. चलो, guys will be finished very soon. Okay, if you are feeling you have positive power, Prince. I have papers. Oh, पेपर नहीं दिखाएंगे. ठीक है, दिखा दिए पेपर. ओके, 2-3 न्यूमेरिकल एंड वी आर डन. ओके, वी आर डन विद द चैप्टर गाइज. इट्स कॉज फॉर पार्टी. बहुत बड़ा ह्यूज चैप्टर खत्म किया हमने, वो भी अच्छे से, ऐसा तुक्काबाजी करके नहीं, अच्छे से खत्म किया. हाँ, वो तो करेंगे ही ना, वो तो करेंगे. सर हमारे पेपर चालू नहीं किए. ये देख, प्रिंस अभी बोल रहा है नेगेटिव, पेपर भी गलत दिखा रहा है. सर हमारे सर ही नहीं आ रहे फिर स्टार्ट भी नहीं किया. हाँ, वो तो एक दिन वो प्रकट होंगे और एक दिन फटाक से खत्म हो जाएगा. स्पीड ऑफ लाइट. उन्होंने कहा एक्स्ट्रा लेक्चर्स नहीं आ रहे. यस, ऑफ कोर्स. यस, वेरी गुड. ओके, चलो न्यूमेरिकल्स करते हैं. 2-3 न्यूमेरिकल मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे इसको किया जाता है. हाउ टू अंडरस्टैंड द वर्ड प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू सॉल्व देम यूजिंग योर लेंस फॉर्मूला एंड योर मैग्निफिकेशन. अ 10 सेंटीमीटर टॉल इमेज 10 सेंटीमीटर टॉल है, इज प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन. देखो, ये सेंटेंस से ही तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है. A 10 centimeter tall image is projected on a screen. अगर कोई भी इमेज स्क्रीन पे प्रोजेक्ट होती है तो वो कैसी इमेज होगी, उसका नेचर क्या होगा? स्क्रीन पे प्रोजेक्ट, अरे स्क्रीन रियल
स्क्रीन पे प्रोजेक्ट होने वाली इमेज हमेशा रियल होती है। स्क्रीन पे जब कोई भी रे ऑफ लाइट मिलती है तो वो रियली मिलती है। मिरर में जब रे ऑफ लाइट मिरर के पीछे मिलती है तो वर्चुअली मिल रही है। ठीक है, स्क्रीन पे रियल इमेज बनती है। अच्छा, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो यहाँ पे क्या बोला है, 10 सेंटीमीटर टॉल इमेज, ये है H2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -10 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन देख लो, -10। ये मैंने वो सेंटेंस से समझ में आया मेरे को। अगर तुम ये नहीं समझ पाओगे, +10 लिख दोगे, कुछ भी सब गलत हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, a 10 centimeter tall image is projected on a screen 50 centimeter away from a convex lens। 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस मतलब क्या है कि ये जो स्क्रीन है इसको कॉन्वेक्स लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, मतलब इमेज डिस्टेंस दिया है। अब ये इमेज रियल है, स्क्रीन पे बन रही है, तो ये हमेशा लेंस के राइट में ही बनेगी ना। सो जो इमेज डिस्टेंस होगा v, दैट विल बी +50। समझ में आया? आइडिया समझा तुम्हें? रियल इमेज है, रियल इमेज कॉन्वेक्स लेंस के राइट में बनती है। ऑप्टिकल सेंटर से राइट में जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं। ये डिस्टेंस, सॉरी, ये जो डिस्टेंस दिया है 50 सेंटीमीटर, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द लेंस। इमेज और लेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है इमेज डिस्टेंस। तो v +50 सेंटीमीटर, समझ में आया? अच्छा, ऑफ फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, सो f इज इक्वल टू +20 सेंटीमीटर। f इज इक्वल टू +20 सेंटीमीटर। ठीक है। फाइंड द पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज। पोजिशन एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, आई एम सॉरी, पोजिशन एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब h1। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे पता है हमको? वी विल यूज लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u, सही है ना फॉर्मूला, इज इक्वल टू 1/f। 1/u माइनस 1/v होता है या क्या होता है? हाँ सर, सही है। करेक्ट लिखा है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब तुम्हें ध्यान रखना है साइन का, करेक्ट साइंस डालो अंदर। 1/50 माइनस 1/u, सॉरी, हाँ, 1/50 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/20, सब प्लस होगा। सो 1/50 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/u। एलसीएम ले लो, 52 ज़ा 25 ज़ा 2 माइनस 5/100 is equal to 1/u, minus 3/100 is equal to 1/u, u is equal to minus 100/3, that is 33.3 centimeter, minus, मतलब the object will be placed at a distance of 33.3 centimeter in front of the lens, on the left of the lens. इसमें सर, Yes, सर 1/u नेगेटिव है ना? 1/u नेगेटिव नहीं है ना, वो साइड ले आना, मैंने उसको पॉजिटिव है ना। ये देखना, -1/u को वो साइड डाला मैं तो पॉजिटिव बन गया, और फिर जो आंसर आएगा ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो आंसर, अगर तुम्हारा साइन कन्वेंशन करेक्ट है ना तो आंसर ऑटोमेटिकली करेक्ट आता है। आंसर में तुम्हें मैंने क्या बोला था साइन कन्वेंशन में, रीड करो तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, बोला था कि नहीं? आया नेगेटिव। ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के, सॉरी, लेंस के लेफ्ट में होता है। ओके, फाइंड द पोजिशन एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। Find the position and size of the object. पोजीशन तो मिल गई, साइज कैसे निकालेंगे? मैग्निफिकेशन। फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन।
दैट इज H2 अपॉन H1, करेक्ट. H2 क्या है? -10. H1 मुझे नहीं पता है, तो फिर ये तो दो चीज़ें मिसिंग हो गई. तो इसके लिए हमें मैग्नीफिकेशन ढूंढना पड़ेगा दूसरे फॉर्मूला से, V/U. सो मैग्नीफिकेशन इज V कितना है? +50. और U कितना है? अभी ढूंढा हमने, -100/3 लिखता हूँ यहाँ पे, तो कोई कन्फ्यूजन ना रहे. ठीक है, 3 ऊपर चला जाएगा. 50 × 3 अपॉन -100. 50 2s are 100, -3/2 मतलब -1.5. ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ -3/2 इज इक्वल टू -10/H2. सो H2 इज इक्वल टू, अच्छा ये माइनस माइनस साइन कट जाएगी दोनों साइड से. सो H2, हे H1 नॉट H2, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ढूंढनी है अपने. H1, ठीक है. H1 विल बी 10 × 2/3, 20/3. 20/3 कितना होता है? 6.66 सेंटीमीटर. तो ऑब्जेक्ट हाइट ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आई, और ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है बिकॉज ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अबाउ प्रिंसिपल एक्सेस. Okay, let's go to the next question. सर स्टेटमेंट नहीं लिखने इसमें. कौन से स्टेटमेंट? सर लाइक द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड द इमेज इज इल्यूमिनेटेड. नहीं, हमें क्या बोला है? फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. पोजीशन मतलब U, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब H1, बस. चलो, द इमेज ऑब्टेन्ड विद अ कॉन्वेक्स लेंस इज इरेक्ट. ओके, द इमेज ऑब्टेन्ड विद अ कॉन्वेक्स लेंस इज इरेक्ट. इसका मतलब है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, मतलब वो जो लास्ट पोजीशन की बात कर रहे हैं. एंड इट्स हाइट इज 4 times द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब मैग्निफिकेशन 4 है. मैग्निफिकेशन इज +4. प्लस क्यों? प्लस क्यों है? क्योंकि इमेज इरेक्ट है. ठीक है, इसलिए. और मैग्निफिकेशन 4 times है, हाइट इज 4 times, तो मैग्निफिकेशन +4 है. द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर. अच्छा, ये कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी, +20 सेंटीमीटर. कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस. कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस. देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये. सबसे पहले मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद है? V/U. मैग्निफिकेशन इज 4 which is equal to V/U. So V is equal to 4U. V is equal to 4U तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 है. इसको हम यूज करेंगे, देखो कैसे. 1/V - 1/U इज इक्वल टू 1/F. ठीक है, V की जगह में लिखूंगा 4U - 1/U इज इक्वल टू 1/20. इसको सॉल्व कर लेंगे LCM लेके. 1 - 4/4U इज इक्वल टू 1/20. सो -3/4U इज इक्वल टू 1/20. सो -3 टाइम्स 20 -3 30 नहीं, -3 times 20 divided by 4 is equal to U. 4 5s are 20. So U is equal to -15 centimeter. U is equal to -15 centimeter.
अच्छा, अभी u मिल गया, u नेगेटिव आया जो होना ही था क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव. v निकालते हैं. v इज इक्वल टू 4u, दैट इज 4 टाइम्स -15 विच इज़ -60 सेंटीमीटर. ये भी करेक्ट है क्योंकि ये जो इमेज है ये वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज है, और ये कॉन्वेक्स लेंस में तभी बनती है जब इमेज लेफ्ट साइड में होती है, ऑब्जेक्ट के साइड में, द फाइनल पोजिशन, द लास्ट पोजिशन. ठीक है गाइस, तो ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे हैं. तुम ट्राई करोगे फर्स्ट हैंड, ओनली देन यू विल कम टू नो, ओनली देन यू विल कम टू नो. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. आई एम गिविंग यू दिस PDF. इसमें एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस हैं. एंड इसके पहले भी आई थिंक मैंने तुम्हें कुछ होमवर्क प्रॉपर दिया नहीं है शायद. 4A4 भी दिया था शायद, एंड आई एम नॉट श्योर, आई विल चेक. बट अपना चैप्टर ये ख़त्म हो चुका है विथ ऑल द रे डायग्राम्स, एवरीथिंग, एंड द लेंस फार्मूला, न्यूमेरिकल्स. अभी तुम लोग प्रैक्टिस करो इसको, एंड फिर उसकी टेस्ट होने वाली है नेक्स्ट वीक, उसके लिए रेडी रहना है.